الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا صدق اللہ رسول۔ سورہ کہف کی 54 نمبر آیات سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر قسم کے مثالیں طرح طرح کی بیان کی ہے، یعنی ہدایت کے جتنے راستے ہوتے ہیں، کبھی ڈرایا، کبھی دھمکایا، کبھی ترغیبات، کبھی ترہیبات، مختلف طریقوں سے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ تو مختلف قسم کے مثالیں بیان کی، کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی دلیل سے مانتا ہے، کوئی ڈر سے، کوئی لالچ سے، اور قرآن نے مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ تو دیکھیں ٹیچر جو ہے نا، ایک معلم پڑھانے والا بہترین وہ ہے کہ بچوں کو چیک کرے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اگر اس کو ڈانٹو گے تب بھی نہیں پڑھیں گے، بعض بچے ایسے ان کو مارو گے نہیں پڑھیں گے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں وہ بغیر ڈانٹنے کے نہیں پڑھیں گے، کچھ بچے ایسے بغیر مارنے کے نہیں پڑھیں گے۔ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اب ٹیچر وہ ہر بچے کو جان لے کہ یہ بچہ ایسے ہے، لیکن عموماً بچے جو ہے وہ پیار اور محبت سے اچھے پڑھ لیتے۔ انسانوں کا بھی یہ کام ہے کہ عموماً قرآن پاک میں بڑے ترغیبات دیے گئے ہیں، اللہ تمہیں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، تمہیں دنیا میں حیات طیبات عطا فرمائے گا اگر تم اعمال صالحہ کرو گے۔ لیکن اکثر چیز میں لڑنے والا ہے، یعنی انسان کی فطرت ہے، جب بات سنتا ہے تو اس کا اپوزٹ جواب دے گا، حالانکہ اس کو تسلیم بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے انا کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس کے بات پر رد کروں تو لوگ بھی بولیں گے ماشاءاللہ اس نے تو رد کر دیا۔ یہ انسان کی فطرت میں کہ مخاطب کی بات کو رد کرے گا، خصوصاً جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ تو پھر کہتے ہیں میں وقت کا فرعون ہوں۔ اللہ میں تکبر سے بچے، بولو آمین۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور انسانوں کو کس چیز نے اس سے منع کیا اور روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ آئی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کس چیز نے ان سے منع کیا ان کو کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے؟ اللہ فرماتا تو مغفرت طلب کرو میں معاف کرتا ہوں بلا شرط، کہ تم کوئی بھی گناہ ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، اللہ فرماتے پورے گناہ میں نے معاف، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس پہ میں شرط لگاؤں، نہیں معاف کر دیا بس۔ یہاں ہدایت سے قرآن اور پیارے عقائد و جہان کی ذات مبارکہ مراد ہے، چونکہ پیارے عقائد و جہان یہ ہادی عالم ہے، آپ اس لیے آپ کو مطلق خدا نکرہ کر کے فرمایا گیا، یعنی ایسی ہدایت کا میلہ آ جانے پر بھی ان سرکشوں کا ایمان نہ لانا بڑے عذاب آ جانے کی تمہید ہے۔ تو یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام اس قدر فصیح اور بلیغ اور یعنی اس کو جو لقب ملا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ صرف کائنات کے ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تو ان کے اندر اللہ نے یہ سب چیزیں ڈالی ہیں، تو اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر کس سے فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला, मगर ये कि इन पर अगलों का दस्तूर आए या इन पर किस्म किस्म का अज़ाब आए। ईमान से, हिदायत से इस्तिग़फ़ार करने से किसने मना किया? किसी ने भी नहीं। लेकिन ये फिर भी गुज़श्ता कौमें जैसे बर्बाद हुई कि अज़ाब आया, फिर फ़ायदा ही नहीं होगा। जब अज़ाब आएगा इनके सामने मालूम हुआ कि जो दलाइल और समझाने से न माने तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम ही है। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुंदिरीन, हम अंबिया को सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले, मुबल्लिग। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सीखते हैं कि तकरीर कैसी की जाए, मुख्तलिफ़ किस्म के। कोई कहते हैं अब मीठी मीठी बातें किया करें, कोई बोलते हैं अब डराए। नहीं भाई, तकरीर सुननी सीखनी है तो कुरान पढ़ो। जैसे आपके सामने बीमार हैं, कानून ये है कि आप जो ये नमाजी है तो नमाजी को बोल दे कि नमाजी जन्नती है, वालिदैन का खिदमत करने वाला, रिज़्क़ हलाल खाने वाला, दुनिया में अमन के लिए सोचने वाला, बड़ों का अदब करने वाला, छोटों पर शफ़क़त करने वाला, ये जन्नती लोग हैं। लेकिन अगर माशरे में इसके अक्स पे लोग देखें कि नमाज छोड़ी जा रही है, शराब पिए जा रहे हैं, बदकारियाँ हो रही है, वालिदैन के नाफरमानी हो रही है, उलमा के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो फिर यहाँ जो है मुनज़िरीन का तरीक़ा अख्तियार है कि लोगों ये जहन्नम का रास्ता है जिस पर तुम कामज़न हो। अगर नेक हैं तो खुशखबरियाँ सुनाएं, लेकिन ये नहीं कि जुमे के दिन बेनमाजी आ गए, शराबी आ गए और आप कहते हैं कि बस कह दो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, तुम तो बस तुमने ला इलाहा पढ़ा ना। मैंने बोले कहाँ लिखा है कि ला इलाहा से तुम जन्नत में जा? क्या ला इलाहा के पढ़ने की कुछ शराइत हैं, कुछ कवानीन हैं। कोई कहता है कि बस तुम्हें नौकरी मिल गई बस तुम्हें पैसे मिलेंगे। नहीं भाई, नौकरी वो के कुछ तकाज़े होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि नौकरी मिल गई तो बस फौज में नौकरी मिल गई घर बैठ जा। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं हम खुशखबरी सुनाने, डर सुनाने वाले भेजे अंबिया को। इस आयत में अल्लाह का करीम ने अपने रसूलों को बिनियाजी उनकी बिनियाजी ज़ाहिर की कि इन पर सिर्फ गलत लोगों को डराना कि रास्ता गलत, नेकोकारों उनसे यानी ये सीधा रास्ता ही गलत, बास उनके फ़राइज़ उलमा, औलिया, पीरों कोई भी हो, इनके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखें कितनी साफ बात है। कोई मैं कहता हूँ कुरान सुनो तुम्हारे नज़रियात सही होंगे। अंबिया सबसे बड़ी अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनका भी काम सिर्फ है ये सही है गलत बस। किसी को साहिब ईमान बनाना, किसी को जन्नती बनाना, ये उनके उसके नहीं है। वो बोले सीधा रास्ता, बात ख़त्म। वरना तो दुनिया में कितने लोग वो कहते हैं कि सब लोग जन्नती बन जाए। नेक जो अंबिया का तो खुसूसन वो था, लेकिन अल्लाह ने बोला नहीं, ये अल्लाह का फ़ैसला है, बस तुम अपना फरीज़ा पूरा करो, ये सही रास्ता। क्योंकि अल्लाह ने तो जहन्नम को भी भरना है और जन्नत को भी भरना है। तुमने जन्नत और जहन्नम के मुतालिक उन्हें गुफ्तगू करी कैसे चलोगे, तो ये जन्नती रास्ता ऐसे चलोगे। मैं तो अल्लाह व रसूल, मैं सल्ला व रसूल, ये दोनों बातें खुल कर है। वयुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़, और जो काफिर हैं वो बातिल के साथ झगड़ते हैं, बातिल के ज़रिए वो जो है हक़ को मिटाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने फूंकों से सूरज का नूर बुझाने की कोशिश करते हैं। ये नाकाम कोशिश है। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, हमारी आयतों को और जिसके ज़रिए इन्हें डराया गया उन्हें मजाक बनाते हैं, उन्हें ठट्टा बनाते हैं, हंसी बना ली इन्होंने।
ومن अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बी, और उससे बढ़कर जालिम कौन है? कोई नहीं है जिससे रब की आयतें याद दिलाई जाएं, हाँ, ज़ुक्किर नसीहत की जाए, हाँ, बिआयाति रब्बी फ़अरद अन्हा, वो उससे मुँह फेर ले, व नसिया भूल जाए मा क़द्दमत यदाहु, जो इसने आगे भेजा इसके हाथों ने, बुरे आमाल फसादात, हाँ, इसका हिसाब होगा। मालूम हुआ कि गुज़श्ता गुनाहों को भूल जाना मरदूदों का तरीक़ा है, गुनाह याद रखना, नेकी भूल जाना सालिहीन का तरीक़ा है। नेकी कर दरिया में डाल, अपने गुनाह और दूसरों के नेकी ज़रूर याद रखो। जिससे नेकी की भूल जाओ, जिसने तुमसे कोई ज़्यादती की उसको भूल जाओ, तूने जो गुनाह किए उसको याद रखो। ये अल्लाह वालों की पहचान है। इन्ना जालना अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर अकिन्नतन ग़िलाफ़ कर दिए हैं। इस ग़िलाफ़ वग़ैरह की निस्बत से रब के तरफ खल्क़ की निस्बत है, यानी इनकी ज़िद्दत इनाद की वजह से अल्लाह ने इनके साथ ये कर दिया। ये नहीं कि वो सही थे और अल्लाह ने ऐसे कर दिया, नहीं, ये गलत रास्ते पे चले तो ऐसे हो गया। अयफ़क़हू, कि ये समझे नहीं, कि कुरान पाक को न समझे। वफ़ी आदानिहिम वक़रा, इनके कानों में गिरानी ढाट, कान से कबूल नहीं करते, आँखों से इब्रस की निगाहों से देखती नहीं, ज़बान से हक बोलती नहीं। तो इसलिए कि इनके दिलों में तुम्हारी अज़मत नहीं। कुरान वहाँ पहुँचता है जहाँ कुरान वाले महबूब की मोहब्बत पहुँच चुकी हो। इसीलिए काफिर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं, फिर कुरान पढ़ाते हैं। लिहाजा इस आयत से ये लाजिम नहीं आता कि वो काफिर भी कसूर हैं, उन पर ऐसे कान भी बंद कर दिए गए, ज़बान नहीं, ये उनकी किरदार की वजह से ये सज़ा मिली। इससे मालूम हुआ कि बेदीन को कुरान करीम की सच्ची समझ नसीब नहीं होती, जैसा कि आजकल का देखा दिखा ले। अब कुरान पाक कितने लोग हैं कि वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती। बाद लोग तो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि कुरान पाक बहुत मुश्किल किताब है। अरे कुरान जैसे आसान किताब दुनिया में नहीं। आप टाइम दें, आपको समझ, छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते, लेकिन आप टाइम दें। फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, कितने मुश्किल मुश्किल मज़ामीन हैं, बच्चे 30-30 साल तक पढ़ते पढ़ते कामयाब होते। आप कुरान पाक 10 साल पढ़ें, आप शेखुल कुरान बन जाओगे। अल्लाह कुरान पाक सुनने की तौफीक अता फरमाए। वइन तदउ मिनल हुदा फलन यहतदू इदन अबदा, और अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो जब भी हरगिज़ कभी हिदायत की तरफ नहीं आएंगे, हिदायत नहीं पाएंगे। तो इससे मुराद वो कुफ़ार है जिनका कुफ़र पर मरना अल्लाह के इल्म में आ चुका है, अल्लाह के इल्म में है, अज़ली बदबख्त। वरना उसके बाद कितने मुसलमान पर्दा, वो काफिर मुसलमान में, वह रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और तुम्हारा रब बख्शने वाला है, मेहरबान है। वल्लाहु युआखिज़ु बिमा कसबू लअज्जलहुम अज़ाब, अल्लाह ताला इनके किरदार की वजह से इनकी गिरफ्त करता तो अज़ाब जल्दी आ जाता। बल्लहुम मौइदुन ला यजिदु मिन दुनिहि मौइला, बल्कि इनके लिए एक वादे का वक्त है जिसके सामने कोई पनाह न मिलेगी। व तिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, ये बस्तियाँ हमने इनको हलाक किया जब इन्होंने जुल्म शिर्क किया। व जअलना लिमहलिक मौइदा, और हमने इनके बर्बादी का एक वक्त मुकर्रर किया था, यानी पिछले कुफार पर भी जल्दी अजाब न आया था, बल्कि उनके लिए हलाकत का एक वक्त मुकर्रर था, उस पर वो हलाक हो गए। तो ये महबूब इनके लिए भी एक वक्त है। अगर यहाँ पे अजाब, अल्लाह करीम ने फरमाया हुजूर के आने के बाद आम अजाब नहीं आएंगे, लेकिन मरने के बाद फिर कब्र में और क़यामत के दिन फिर ये अजाब में मुब्तला होंगे। जो गलत रास्ते पर चला, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मिसवाक का बताता हूँ, ये भी दुआ करके बताता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल वस्सलाम या अल्लाह करीम।